My dear students, welcome to Mathological. Let us start another session on linear equations with some wonderful questions. And if you have not already subscribed to the YouTube channel and you're liking the content, then make sure to subscribe to it as well as press the bell icon. You can also join the Telegram channel Mathological and can message me on Telegram at ADITYAKT. My name is Adit Kumar Tiwari and you're watching Mathological. First question. N is a natural number such that 9 is less than n and n is less than 1000. If s is sum of digits of n and p is a product of digits of n, then 4s plus 6p is equal to 4n. Find the number of possible values of n. Now this question was asked by some student a few days ago. Try करते हैं इस question को. ठीक है. n is a natural number such that 9 is less than n and n is less than 1000. So n हमारा 9 से लेके 1000 के बीच में है and s is sum of digits of n and p is product of digits of n, and also the equation given is 4s, 4 times s plus 6 times p, that is equal to 4 times n. So find the number of possible values of n. Number of possible values कितना होगा? Now first line कह रहा है 9 is less than n and n is less than 1000. Okay. पहले अपने n पे एक बार पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करना. So 9 is less than n, n is less than 1000, यानी कि n हमारा 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, और it can also be at max 999. So n can be a 2-digit number or a 3-digit number. या तो 2-digit number होगा और या फिर 3-digit number होगा. दो केसेस बनेंगे यहाँ पे. ठीक है. और क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स की बात कर रहा है, सो अगर 2-digit नंबर है, पहला केस लेते हैं, केस 1, when n is a 2-digit नंबर. सो अगर 2-digit नंबर है, मान लिया कि n हमारा है ab इज इक्वल टू n, सो n हमारा हो जाएगा 10a प्लस b. ओके, 10a प्लस बी हो जाएगा n इज इक्वल टू 10a प्लस बी. फाइन. रिप्रेजेंटेशन ए बी है और वैल्यू है 10a प्लस बी. तो पहली इक्वेशन लिखते हैं 4s प्लस 6p इज इक्वल टू 4n. पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, इंस्टेड 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो हो जाएगा 2s प्लस 3p इज इक्वल टू 2n. Okay, so sum will be a plus b, so 2 times a plus b plus 3 times the product, and product is ab, so 3 times a into b is equal to 2 times n, और n है 10a plus b. So 3 times a into b will be equal to 20a minus 2a, तो 18a प्लस 2b माइनस 2b, तो b तो कैंसिल आउट हो गया, तो 3 टाइम्स ab इज इक्वल टू 18a एंड हेंस ab विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स a. एंड इफ ab इज इक्वल टू 6 टाइम्स a, तो क्लियरली b इज इक्वल टू 6 आ गया यहाँ से. b इज इक्वल टू 6 एंड a कैन टेक एनी वैल्यू, क्योंकि ab इज इक्वल टू 6 है, a पे तो कोई कंडीशन है नहीं, तो a कैन टेक एनी वैल्यू व्हाटसोएवर. द ओनली थिंग दैट ओनली रेस्ट्रिक्शन दैट इज ऑन a, दैट a विल नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज अल्टीमेटली हमारा 2-digit नंबर है, तो a 0 नहीं हो सकता है. ठीक है, बिकॉज 9 से बड़ा है. So a cannot be equal to 0, b is equal to 6. नंबर ऑफ वैल्यूज कितना होगा? तो n कैन टेक कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? इट कैन बी 16, 26, 36 till 96. टोटल वैल्यूज विल बी 9. So it can take 9 values. If n is a 2-digit number, then it can take 9 values. Is that part clear? तो पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया. मेजर जो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, दैट इज द सेकंड पार्ट. जब n हमारा एक 3-digit नंबर होगा तब कैसे सॉल्व करेंगे, बट वो भी आसान है, कर लोगे. ट्राई करते हैं. तो सेकंड केस इज that let us say n is a 3-digit number. n is a 3-digit number, and if n is a 3-digit number, तो नंबर हमारा हो जाएगा abc, और वैल्यू ऑफ n will be equal to 100a plus 10b plus c. This will be value of n. Okay, ठीक है. और 2s plus 3p is equal to 2n. सिंप्लीफाई तो कर ही लिया था हमने. ठीक है, 2s plus 3p is equal to 2n. पुट करते हैं वैल्यूज. So sum is a plus b plus c, 2 times a plus b plus c plus 3 times a into b into c, that is equal to 2 times n, और n है 100a plus 10b plus c. So 200a plus 20b minus 2a minus 2b और प्लस 2c माइनस 2c तो कैंसिल ही हो रहा है, ये तो कैंसिल ही हो रहा है. दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स abc.
So 200a minus 2a is 198a plus 20b minus 2b is 18b plus 18b is equal to 3 times abc. And if we divide by 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा 66a plus 6b is equal to a into b into c. This is our equation. 66a plus 6b is equal to a into b into c. यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि अब इसके बाद थोड़ा बहुत थिंकिंग करना पड़ेगा, यहां तक तो समझ में आता है, ठीक है. 66a plus 6b is equal to abc. a into b into c. अब कैसे अप्रोच करें इस क्वेश्चन को, क्या किया जाए? ये तो श्योर है कि a इज नॉट इक्वल टू 0. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ a विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1. मिनिमम होगा a तो भी 1 तो होगा, 1 तो होगा, बिकॉज 66 मल्टीप्लाई हो रहा है a में और 6 मल्टीप्लाई हो रहा है b में. तो a b c जो प्रोडक्ट का वैल्यू है, इसका मिनिमम कितना वैल्यू हो सकता है? मिनिमम वैल्यू हो सकता है व्हेन a इज इक्वल टू 1 एंड b को 0 मान लें. बट b जब 0 हो जाएगा तो a b c भी तो 0 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है. सो हम लेट अस से b को भी 1 मान लें, तो मिनिमम कितना हो जाएगा? 66 प्लस 6 72. बिकॉज b इज इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, क्लियर है? बिकॉज सम आ रहा है हमारा 66a प्लस 6b इज इक्वल टू abc और a 0 हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली abc में से कोई भी वैल्यू 0 नहीं होगी. ऑल विल बी नॉन जीरो, ऑल विल बी नॉन जीरो. ठीक है, 72 मिनिमम वैल्यू आएगा. क्या बात क्लियर है? abc का. और दो एट प्रेजेंट अभी जो इक्वेशन का फॉर्मेट है उसमें 72 हम बना नहीं पाएंगे, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 से. ओके, ठीक है. तो अब ये मिनिमम वैल्यू होगा. मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? मैक्सिमम कुड बी व्हेन a इज इक्वल टू 9. जब a को हम 9 पुट कर दें और b को भी पुट कर देते हैं 9, बिकॉज डिस्टिंक्ट होना जरूरी नहीं है, इक्वल भी हो सकते हैं. तो 66 प्लस 6 72 इंटू 9, दिस विल बी 720 माइनस 72 648. 648 विल बी मैक्सिमम वैल्यू. पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं अभी हम, फॉर श्योर अभी हम श्योर नहीं है कि ये वैल्यूज अटेन करेंगे नहीं करेंगी, बट दीज आर द पॉसिबल केसेस. ठीक है, दीज आर द पॉसिबल केसेस. अभी हम क्या बेटर काम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा कोई एक वेरिएबल तो एलिमिनेट हो जाए कहीं पे, तो कुछ हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकें. सो इफ वी जस्ट इन केस इफ वी डिवाइड बाई ए, पूरी इक्वेशन को अगर ए से डिवाइड कर दें तो क्या रिजल्ट मिलेगा? ए बी सी बाई ए विल बी बी इंटू सी एंड दैट विल बी इक्वल टू 66 प्लस 6 टाइम्स बी बाई ए. अब ए से डिवाइड करते ही हमारा 66 तो इंटीजर आ गया. सो नाउ दिस इक्वेशन इज 66 प्लस 6 टाइम्स बी बाई ए. दैट इंप्लाइज कि जो पूरा हमारा राइट हैंड साइड है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 66. इक्वल टू तब होगा जब b 0 होगा, बट b 0 हो नहीं सकता, तो यानी कि क्लियरली दिस इज ग्रेटर देन 66. क्या ये बात क्लियर है? दिस विल बी ग्रेटर देन 66. सम हमारा ग्रेटर देन 66 आएगा. और b इंटू सी का प्रोडक्ट जो है ये हमारा 66 से बड़ा होना चाहिए. और b एंड c बोथ आर डिजिट्स, क्योंकि डिजिट्स हैं तो ये वैल्यूज हमारी 0 से लेकर 9 के बीच में कोई वैल्यू ले सकता है. ठीक है, इजंट इट सो? तो इफ वी टेक b इज इक्वल टू, लेट अस से इफ वी टेक b इज इक्वल टू 1, तो क्या c की कोई भी ऐसी वैल्यू ले सकते हैं कि प्रोडक्ट उनका 66 से बड़ा है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. फॉर एनी वैल्यू ऑफ c, कुछ भी वैल्यू लोगे दिस विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 9. कभी भी 66 नहीं हो पाएगा. 2 लोगे तो भी वही सेम कहानी है, लेस देन इक्वल टू 18 रहेगा. सो मिनिमम वैल्यू भी अगर लोगे, अगर तुम इफ यू टेक b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 9, c की मैक्सिमम वैल्यू लिया है और b को हमने इक्वल टू 7 लिया है, स्टिल 7 इंटू 9 इज ऑल्सो 63 ओनली, विच इज लेस देन 66. तो यानी कि अभी भी b इज इक्वल टू 1 से लेकर 7 तक हमें कोई भी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है. इजंट इट सो? क्या ये बात क्लियर है? तो 1 से लेकर 7 तक कोई भी सॉल्यूशन मिलेगा नहीं. सो फर्स्ट सॉल्यूशन दैट विल गेट इज फॉर b इज इक्वल टू 8. इफ b इज इक्वल टू 8 एंड इफ वी टेक c इज इक्वल टू 8, तब भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. सो इफ b इज इक्वल टू 8, c मस्ट बी इक्वल टू 9. c मस्ट बी इक्वल टू 9. ओके, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि उसी केस में b इंटू सी इज 72 और b कुड बी इक्वल टू 9 एंड c इज इक्वल टू 8 और बोथ इक्वल टू 9. सो दीज आर द 3 पॉसिबल केसेस. 3 पॉसिबल केसेस. क्लियर है? सो 3 पॉसिबल केसेस हमारे हो गए. b इज 8, c इज 9, b इज 9, c इज 8 और बोथ आर इक्वल टू 9. बोथ आर इक्वल टू 9. नाउ 6 इंटू b अपॉन a, दिस शुड ऑल्सो बी एन इंटीजर, बिकॉज b इंटू c होगा तो इंटीजर ही. 66 भी इंटीजर ही है, तो b बाई a को इंटीजर होना है. ठीक है, b बाई a को इंटीजर होना, और सिर्फ इंटीजर ही नहीं होना है. सम 66 प्लस 6 इंटू बी बाई ए का अगर 72 आना है, बिकॉज b इंटू सी क्या है? 72. हियर 72, यहां भी 72 और यहां पे आएगा 81. सो दैट इंप्लाइज कि 6 इंटू बी अपॉन ए क्या होना चाहिए? दैट मस्ट बी 72 माइनस 66. तो फर्स्ट केस में आएगा 6, सेकंड केस में आएगा 6 और लास्ट केस में वैल्यू आएगा 81
minus 66, that is 15. Okay, clear? And if b is equal to 8, b is equal to 8, तो एक तरह से 6 times b upon a is 6, यानी कि b by a will be equal to 1, यानी कि a will be equal to b, a will be equal to b, तो a will also be equal to 8, a will also be equal to 9. But if 6 times b upon a is 15, तो b by a will be equal to 5 by 2. 5 by 2 आ जाएगा. क्या ये पॉसिबल है? बिकॉज b इज इक्वल टू 9, तो a के लिए हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं. सो यहां पे भी कोई वैल्यू a का मिलेगा नहीं. सो दिस सॉल्यूशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सो देयर आर ओनली 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल in this case. By either n will be equal to a is 8, so 8 89, or n will be equal to 9 98. These are 2 possible cases for 3-digit numbers. So total number of possible values of n कितना हो जाएगा? That would be 9 for 2-digit numbers and 2 for 3-digit numbers. So 9 plus 2, 11 possible values. Very good question. 11 possible values will be there. क्या ये बात क्लियर है? ठीक, आंसर आ जाएगा 11 possible values will be there. बहुत ही प्यारा सवाल, और एक बार फिर से इसका सॉल्यूशन तुम चेकआउट कर लेना, समझ लेना अगर कहीं पे डाउट आए तो. एंड और अगर वैसे भी डाउट आता है कुछ अलग से तो यू कैन ऑल्सो कमेंट. ठीक है, ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर के ए बी सी सच दैट 5kx plus ay is equal to 15 and bx plus cy is equal to 12 have infinitely many solutions if k, a, b, c are all natural numbers and less than 25. Very good question. Very good question. Pause the video and try to solve it. देखो कहाँ पे कहीं पे गलती करते हो कि नहीं करते हो. कॉशियस रहना, अच्छे से सॉल्व करना. ठीक है, इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस चाहिए, और इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशंस कब मिलते हैं? जबकि हमारी लाइंस आइडेंटिकल हो. बोथ लाइंस आर सुपर इम्पोज, आइडेंटिकल लाइंस है कि नहीं? आइडेंटिकल लाइन की इक्वेशंस हो. और आइडेंटिकल लाइंस के इक्वेशंस का मतलब क्या हुआ कि जो रेशियो है उनके कोफिशिएंट्स का दैट शुड बी सेम. यानी a1 by a2 विल बी इक्वल टू b1 by b2 विल बी इक्वल टू c1 by c2. और a1 यहाँ पे क्या आ रहा है? a1 यानी कि इफ द इक्वेशंस आर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. सो फर्स्ट इक्वेशन है 5kx, तो कोफिशिएंट है 5k, 5 नहीं है कोफिशिएंट, 5k है, ध्यान रखना. ठीक है, सो 5k डिवाइड बाई सेकंड इक्वेशन में क्या आ रहा है? b, x का कोफिशिएंट आ रहा है b, तो 5k by b दिस विल बी इक्वल टू b1 by b2, यानी कि y का कोफिशिएंट विच इज a अपॉन c, एंड दैट विल बिकॉज c1 by c2, यानी 15 by 12, एंड 15 by 12 कैन फर्दर बी सिंप्लीफाइड टू 5 by 4. So the ratio should be equal to 5 by 4. Okay, and all the numbers k, a, b, c, all natural numbers are less than 25. All natural numbers k, a, b, c are less than 25. Equal to नहीं है, less than 25 है. Okay. So सबसे पहले देखते हैं k और b के लिए, because 5k by b is 5 by 4, and if 5k by b is 5 by 4, तो k by b क्या आ जाएगा यहाँ से? k by b आ जाएगा इक्वल टू 1 by 4, 1 by 4. So if k is equal to 1, if k is equal to 1, then b will be equal to 4. If k is equal to 2, b will be equal to 8. If k is 3, b will be 12, and so on. If k is equal to 5, b will be equal to 20. And if k is equal to 6, b will be equal to 24. इससे बड़ा वैल्यू लोगे तो b हमारा 25 को एक्सीड कर जाएगा. So these are the only possible solutions. These are the only possible solutions, है कि नहीं? ठीक है, अगर 5k के हिसाब से सोचते 5k 30 आ जाता, बट हमारी कंडीशन किस पे है? k पे है, 5k पे थोड़ी है. तो k हमारा 6 है, तो डेफिनेटली 5k 30 हो रहा है, उससे प्रॉब्लम नहीं. k शुड बी लेस देन 25, तो k हमारा डेफिनेटली लेस देन 25 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. k इज इक्वल टू 6 ओनली. k को इससे बड़ा ले सकते थे, बट b हमारा 25 को एक्सीड कर जाएगा, दैट इज वाई k को 6 से बड़ा हम नहीं लेंगे. सो दीज आर ओनली पॉसिबल सॉल्यूशंस. 6 सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें यहाँ पे k और b के लिए. सिमिलरली फॉर a एंड c, a by c is 5 by 4. So if a is 5, b will be 4. If a is 10, b will be 8. If a is 15, b will be 12. And if a is 20, b will be 16. And if a is 25, b will be 20. But the problem is a cannot be equal to 25. a has to be less than 25. तो ये solution भी हम नहीं ले पाएंगे. The only solutions in this case will be 4. और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. k हमारा 1 और 4 हो सकते हैं, और a c कोई भी वैल्यू ले लेंगे चारों में से. सिमिलरली a और c की कोई वैल्यू ले लो, और उसके लिए k और b की वैल्यू 6 में से कोई भी हो सकती है. 6 में से कोई भी हो सकती है, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 6 into 4. हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव? डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए. ओके, डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए ना.
तो 6 into 24 तब होता हमारा जबकि डिस्टिंक्ट वाला कंडीशन नहीं होता, तो 24 सॉल्यूशंस होते। बट क्वेश्चन में एक और बात कही है कि डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ओके, सो ऑल के ए बी सी शुड बी डिस्टिंक्ट एज वेल, डिस्टिंक्ट एज वेल। तो इफ वी आर टेकिंग के बी, एक सेपरेट पेज पे देखते हैं, ठीक है। सो इफ वी आर टेकिंग के बी एज 1 and 4, सो फॉर द फर्स्ट केस क्या सॉल्यूशन मिलेंगे हमारे, ना तो ए और सी में से किसी को 1 होना चाहिए, ना ही 4 होना चाहिए, यानी कि पहला वाला सॉल्यूशन तो एलिमिनेट हो जाएगा। सो बचे हुए 3 सॉल्यूशंस काम करेंगे। सो 3 सॉल्यूशंस फॉर ए एंड सी। ओके, ठीक है। इफ के एंड बी आर 2 and 8, इन दैट केस से सेकंड वाला सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो तब भी 3 सॉल्यूशंस रहेंगे हमारे काम के, 3 सॉल्यूशंस ऑफ ए एंड सी। थर्ड केस 3 and 12, अगेन 12 वाला सॉल्यूशन नहीं आएगा, बाकी 3 सॉल्यूशंस काम के रहेंगे। नेक्स्ट इज 4 and 16, सेम लॉजिक, 3 सॉल्यूशंस काम के रहेंगे, 16 वाला नहीं रहेगा, ठीक है। देन 5 and 20, ठीक है, 4 and 16 चल जाएगा, 5 and 20, तो 5 and 20 में हमारा ये जो लास्ट सॉल्यूशन है ये काम नहीं करेगा बिकॉज 20 इज देयर, ठीक है। और पहला सॉल्यूशन भी काम नहीं करेगा बिकॉज 5 इज देयर, तो 2 ही सॉल्यूशंस रहेंगे 5 and 20 में। ये थोड़ा सा क्रिटिकल केस था, ठीक है, ये थोड़ा क्रिटिकल केस था। ओके, यहाँ पे गलती होने का स्कोप था। पहला सॉल्यूशन भी काम नहीं करेगा बिकॉज वहाँ पे ए 5 हो जाएगा, और लास्ट वाला सॉल्यूशन भी काम नहीं करेगा बिकॉज वहाँ पे ए 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन ही मिलेंगे 5 और 20 पे। एक बार फिर से देख ले, 1 और 4 पे हमें 3 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं ना, हाँ, ना तो 1 कहीं पे आ रहा है, 4 कहीं पे, दैट इज फाइन। 2 and 8 पे 3 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, यस दैट इज ऑल्सो फाइन। 3 and 12 पे 3 सॉल्यूशंस मिल रहे हैं बिकॉज 12 एक जगह पे आ रहा है, 3 तो कहीं पे भी नहीं आएगा ऑब्वियसली। और 4 और 16 पे भी 3 सॉल्यूशंस मिलेंगे। 5 और 20 पे 2 ही सॉल्यूशंस मिलेंगे। नेक्स्ट आया 6 and 24, और ना तो 6 कहीं पे भी आ रहा है, ना तो 24 कहीं पे भी आ रहा है। सो यहाँ पे हमारे सारे 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो दीज आर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 3 + 3 + 3 + 3 12 + 6 18 सॉल्यूशंस, 18 सॉल्यूशंस होंगे काम के। सो इस क्वेश्चन में एक तो पहले कॉन्सेप्ट था और बाद में डिस्टिंक्ट की वजह से हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ा, ठीक है। क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्या सॉल्यूशन क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A fraction becomes, अब ये क्वेश्चन थोड़े से इजी है। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from both the numerator and denominator. The same fraction becomes 1/2 when 1 is added to both the numerator and the denominator. Sum of the denominator and denominator of the fraction क्या होगा? Fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from both the numerator and denominator. मान लेते हैं हमारा जो फ्रैक्शन है that is n/d, where n is numerator and d is denominator. तो n/d है हमारा फ्रैक्शन, ओके। When 1 is subtracted from both, तो n - 1 upon d - 1, this is equal to 1/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा 3n - 3 इज इक्वल टू d - 1, या फिर इक्वेशन बन जाएगा 3n - d इज इक्वल टू 3 + 1 4, 3 - 1 2, 3 - 1 2, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस क्या हो रहा है, द सेम फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 एंड 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो n + 1 अपॉन d + 1, दिस इज 1/2। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, so 2n + 2 will be equal to d + 1. 2n + 2 is equal to d + 1. अब फर्स्ट इक्वेशन से d को पुट कर सकते हैं हम 3n - 2, पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, तो रिजल्ट आ जाएगा 2n + 2 is equal to d is 3n - 2 + 1. So 2n + 2 is 3n - 1 and hence n will be equal to 3. n will be equal to 3. क्या है, पार्ट क्लियर है, ठीक है। और अगर n 3 आ गया तो d कितना आ जाएगा, d will be equal to 3n - 2. So that is 7. That is 7. If you subtract 1 from both, 2/6 1/3 हो जाएगा, 1 ऐड कर दोगे 4/8 हो जाएगा. So yes, answer is 3/7. But question पूछ रहा है sum of numerator and denominator, so that will be 3 + 7 which is equal to 10. Answer will be option B. ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। एक और तरीका देखते हैं इस क्वेश्चन में, जो इस क्वेश्चन में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा, बट आगे जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी कि स्टार्ट हम जो करेंगे, ठीक है, हमने अभी 2 अननोन माने, एक न्यूमरेटर माना और एक डिनोमिनेटर माना, इंस्टेड ऑफ दैट हम सिर्फ और सिर्फ एक अननोन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हमारा फ्रैक्शन है दैट शुड बी 1/3, और कब बन रहा है 1/3, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. सो व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग 1
फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बन जा रहा है 1/3। तो अगर फ्रैक्शन है 1/3, तो अगर हम मान लेते हैं न्यूमरेटर हमारा x हो जा रहा है, कब? सब्ट्रैक्ट करने के बाद में। इफ न्यूमरेटर इज x, तो डिनोमिनेटर होना चाहिए 3x, डिनोमिनेटर होना चाहिए 3x, इजंट इट? तभी तो 1/3 आएगा भाई। 1/3 आया तो डेफिनेटली हमारा क्या होना चाहिए था? न्यूमरेटर होना चाहिए था x और डिनोमिनेटर होना चाहिए था 3x। ये कब है? सब्ट्रैक्ट करने के बाद में, आफ्टर सब्ट्रैक्शन है, आफ्टर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर आफ्टर सब्ट्रैक्शन दिस वैल्यू इज x एंड x अपॉन 3x, तो बिफोर सब्ट्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? न्यूमरेटर विल बी x प्लस 1, क्योंकि उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तुमने, ठीक है, और डिनोमिनेटर होगा 3x प्लस 1। तभी तो हुआ, जैसे ही तुमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट आ गया तुम्हारा x/3x विच इज 1/3। क्या ये बात क्लियर है? तो हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा दैट विल बी x प्लस 1 बाई 3x प्लस 1। इज दैट क्लियर? एंड इफ दैट इज सो, इफ दैट इज सो, तो जब हम 1 ऐड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 2, एंड डिनोमिनेटर विल बी 3x प्लस 1 प्लस 1, तो 3x प्लस 2, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 2x प्लस 4 will be equal to 3x plus 2, and hence x will come out to be equal to 2। x is equal to 2 आ गया, पुट कर दोगे ओरिजिनल इक्वेशन में, 3/7 will be the answer, और एक ही अननोन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये अप्रोच भी समझ में आना चाहिए, दिस शुड ऑल्सो बी क्लियर। कभी कभी जब हमारे पास अननोन ज्यादा होंगे तो बहुत सारे अननोन मान के हम अपने लिए चीज़ों को हौच पौच करने के बजाय अननोन्स को कनेक्ट करेंगे जहां पे भी इंफॉर्मेशन से पॉसिबल होगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ओके, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The price of 2 notebooks and 4 files is rupees 640. With the same money, one can buy 1 notebook and 6 files. If one wants to buy 16 files, how much shall he have to pay? ठीक है, कितना पे करना पड़ेगा उसको? ओके, सो इनिशियली 2 नोटबुक्स, अगर नोटबुक का प्राइस मान लेते हैं n, एंड 4 फाइल्स, लेट अस से फाइल का प्राइस इज f, 2n plus 4f is equal to 640. And with the same money, one can buy 1 notebook and 6 files. So 1 notebook प्लस 6 फाइल्स का प्राइस भी 640 ही है। ओके, सो इफ यू चेक दीज टू, तो राइट हैंड साइड तो इक्वल है, सो 2n प्लस 4f, दिस इज इक्वल टू 1n प्लस 6f, 2n माइनस 1n इज n ओनली, और n इज इक्वल टू 2f, यानी कि 1 नोटबुक का प्राइस इज इक्वल टू 2 फाइल्स का प्राइस। 1 नोटबुक का प्राइस इक्वल टू 2 फाइल्स का प्राइस, और क्वेश्चन पूछा 1 वांट्स टू बाई 16 फाइल्स, यानी कि हमें अल्टीमेटली फाइल्स ही बाय करनी है, तो यानी कि फाइल्स के लिए वैल्यू चाहिए, तो नोटबुक को n को रिप्लेस कर देते हैं 2f से, किसी भी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर दो, लेट अस से सेकंड इक्वेशन में कर दिया, तो वैल्यू आ जाएगा 1n, यानी कि 2f प्लस 6f विच इज इक्वल टू 8f इज इक्वल टू 640। तो अगर 8 फाइल्स का प्राइस है 640, 16 फाइल्स परचेज करनी है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 16 फाइल्स का प्राइस हो जाएगा 1280 रुपीज। आंसर विल बी 1280 रुपीज। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, क्लियर है? ठीक है, और इस क्वेश्चन को एज सच इसमें इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत थी ही नहीं, स्ट्रेट अवे यहाँ पे देखो, प्राइस ऑफ 2 नोटबुक एंड 4 फाइल्स इज 640, एंड विद द सेम मनी, यानी 640 रुपीज में ही वन कैन परचेज 1 नोटबुक एंड 6 फाइल्स। तो देखो नोटबुक पे क्या फर्क पड़ा है, 2 से हो गई है 1, नोटबुक 1 रिड्यूस हो गई है, और फाइल्स हमारी 4 से हो गई है 6, फाइल्स 2 से इंक्रीज कर गई हैं, यानी कि 1 नोटबुक का प्राइस शुड बी इक्वल टू 2 फाइल्स का प्राइस। अगर 1 नोटबुक हमने कम परचेज की और उसी प्राइस से हमने 2 फाइल्स एक्स्ट्रा परचेज कर ली, यानी 1 नोटबुक का प्राइस विल बी इक्वल टू 2 फाइल्स का प्राइस। एंड इफ दैट इज सो, 1 नोटबुक का प्राइस इज इक्वल टू 2 फाइल्स का प्राइस, तो 1 नोटबुक प्लस 6 फाइल्स, यानी कि 1 नोटबुक की जगह 2 फाइल्स कर दो, 2 फाइल्स प्लस 6 फाइल्स, 8 फाइल्स का प्राइस हो जाएगा 640, 16 का हो जाएगा जस्ट डबल, दैट इज 1280 स्ट्रेट अवे। क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a regular week, there are 5 working days, and for each day, the working hours are 8. A man gets rupees 24 per hour for regular work and rupees 32 per hour for overtime. If he earns rupees 4480 in 4 weeks, then how many hours does he work for? How many hours does he work for? So for regular work, he is getting rupees 24 per hour, and for extra work, overtime, he is getting rupees 32 per hour. और regular work कितना है? 5 working days है, and for each day, he is getting 8 working hours. सो 4 वीक्स में क्या होता है, कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितना हो जाएगा 4 वीक्स में? ईच वीक इट इज 5 वर्किंग डेज इंटू 8 वर्किंग आवर्स, और 4 वीक्स है इंटू 4, सो दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स 8 इंटू 4 32 इंटू 5 160 आवर्स, और फॉर ईच आवर ही विल बी गेटिंग 24 रुपीज, तो 160 इंटू 24, 24 इंटू 6 144, 4 आ गया, 14 प्लस 24 4040 रुपीज ही विल बी पेड फॉर रेगुलर वर्क। क्लियर है? ठीक है,
एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया है। 24 इंटू 6 इज 144, 4 आ गया 14, और 24 प्लस 14 38 आ गया, 3840। 3840 रुपीज़ हो गया। ओके, और टोटल अमाउंट है 4480। सब्ट्रैक्ट कर दो 4480 में से, तो हमें ओवर टाइम का अमाउंट पता चल जाएगा। कितना बचा हमारा? 4480 माइनस 3840 इज 640 रुपीज़। सो एक्स्ट्रा working hours will be equal to total amount is 640, per hour amount is 32, 640 by 32 is 20 hours. बट क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल वर्किंग आवर्स कितने थे? 160 तो रेगुलर आवर्स थे, 20 एक्स्ट्रा आवर्स थे, तो 160 प्लस 20 आंसर विल बी 180 ओनली, ऑप्शन सी। 180 hours was the total work that he did in 4 weeks. Okay. Next question. A teacher invited all his students for a party. 1/3 of her students came with a sibling. Each boy belonging to her class received 12 chocolates. Each girl belonging to her class received 17 chocolates and each of the siblings received 9. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जो क्लास में बिलोंग करने वाले बॉयज थे उनको मिली है 12, क्लास में बिलोंग करने वाले गर्ल्स थे उनको मिली है 17, और जो सिबलिंग्स है वो बॉय हो या गर्ल हो उनको 9 चॉकलेट से मिला है। ठीक है, उनको कम चॉकलेट्स मिली है। इन टोटल शी डिस्ट्रीब्यूटेड 305 चॉकलेट्स। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास? वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चॉकलेटी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पिक करो हर जगह से। एक टीचर ने इन्वाइट किया है सब अपने स्टूडेंट्स को। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स केम विद अ सिबलिंग, तो 1/3 स्टूडेंट्स का सिबलिंग आया है, कि सिबलिंग आए हैं। लेट अस से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 60 होते हैं, अगर 60 स्टूडेंट्स होते, एक रैंडम वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। 60 स्टूडेंट्स अगर होते तो 60 में से 20 सिबलिंग को लाए हैं, तो 20 के साथ में सिबलिंग भी आया है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितना हो जाएंगे जिनको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा हमने? 60 तो स्टूडेंट्स ही हैं, जिनमें से कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगी, एडिशनली 20 सिबलिंग्स भी होंगे, एडिशनली 20 सिबलिंग्स भी होंगे। ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हो जाएंगे 80। ठीक, टीचर को तो सिबलिंग हमने चॉकलेट दिया नहीं, टीचर ने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 80 पर्सन्स हो जाएंगे। ऑब्वियसली टीचर को एडिशनली इंक्लूड करना है, बट टीचर की कोई यहाँ पे कैलकुलेशन में जरूरत नहीं है, टीचर तो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, सो 80 पर्सन्स होंगे इन दैट केस। या जनरलाइज करें इसी सेम बात को, जनरलाइज करें इसी सेम बात को, तो लेट अस अज्यूम कि स्टूडेंट्स हैं हमारे 3x, बिकॉज अल्टीमेटली हमें 1/3 स्टूडेंट्स लाए हैं सिबलिंग। तो इफ स्टूडेंट्स आर 3x, तो आउट ऑफ 3x सम विल बी बॉयज सम विल बी गर्ल्स, बट आउट ऑफ दिस 3x x के साथ में सिबलिंग भी आया होगा, यानी कि सिबलिंग्स कितने होंगे? x होंगे। 3x स्टूडेंट्स होंगे और x होंगे सिबलिंग, टोटल 4x पर्सन्स होंगे, टोटल 4x होंगे पर्सन्स। क्लियर? अब बॉयज रिसीव्ड 12 चॉकलेट्स, girls received 17 chocolates and each of the siblings received 9 chocolates. siblings को मिली है 9 chocolates, और क्वेश्चन पूछ रहा है गर्ल्स के बारे में, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? तो गर्ल्स मान लेते हैं कि जी ही हैं, जी हैं गर्ल्स। सो इफ गर्ल्स आर जी, बॉयज कितने हो जाएंगे? बिकॉज b प्लस जी विल बी 3x, बॉयज प्लस गर्ल्स विल बी 3x, तो b यहां से आ जाएगा हमारा 3x माइनस जी, तो b की जगह पुट कर दोगे 3x माइनस जी। दिस इज नंबर ऑफ बॉयज, दिस इज नंबर ऑफ गर्ल्स, और सिबलिंग्स कितने होंगे? x होंगे। तो दो ही अननोन हमारे रह गए, x एंड g, b को हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया। क्लियर? अब 12 चॉकलेट्स मिली हैं हर एक बॉय को, बॉय को मिली है 12 चॉकलेट्स, गर्ल को मिली है 17 चॉकलेट्स, और सिबलिंग्स को मिली है 9 चॉकलेट्स। इक्वेशन बनाते हैं अपनी, इक्वेशन बनाते हैं। तो 12 इंटू 3x माइनस जी, दिस विल बी नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिसीव्ड बाई बॉयज, प्लस गर्ल्स को मिली है 17, गर्ल्स है जी, तो 17 जी नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिसीव्ड बाई गर्ल्स, एंड प्लस 9x will be number of chocolates received by siblings, and total is equal to 305. क्या इस इक्वेशन में कोई दिक्कत? 12 into 3x minus g plus 17g plus 9x, that is equal to 305. Okay, so 12 into 3x कितना हो जाएगा? This will be 36x minus 12g plus 17g plus 9x is equal to 305. तो 36x plus 9x हो जाएगा 45x, 45x plus 5g, this is 305. Now divide this equation by 5, डिवाइड कर दोगे 5 से, बच जाएगा 9x प्लस g इज इक्वल टू 61। अब ये तो हमें पता है कि x और g दोनों ही इंटीजर वैल्यूज होंगी, दोनों ही इंटीजर होगा, और अब हमारी एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करना है। 9x प्लस g इज इक्वल टू 61। 61 ना तो हमारा मल्टीपल 9 का है, 1 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है, 1 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। सो कितना इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 61 में कि हमें 9 का मल्टीपल मिल जाए? 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा। तो g कुड बी इक्वल टू 7, और इफ g इज इक्वल टू 7 है तो 61 माइनस 7 इज 54, तो x विल बी इक्वल टू 54 बाई 9, यानी कि 6 आ जाएगा।
दिस विल बी फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और नेक्स्ट सॉल्यूशन एक्स का किस पे डिपेंड करेगा, जी के कोफिशिएंट पे, विच इज 1 ओनली, 1 है कोफिशिएंट, ठीक है। सो 6 - 1 नेक्स्ट वैल्यू विल बी 5, डिक्रीज करेगा ऑब्वियसली वैल्यू, ठीक है, डिक्रीज करेगा। और ये जो 7 है दिस विल बी इंक्रीजिंग इन दैट केस, तो 7 डिपेंड करेगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, 7 + 9 16, या इससे पीछे वाला वैल्यू क्या था, 7 - 9, बट वो निगेटिव हो जाता, -2 हो जाता, तो -2 तो होगा नहीं, गर्ल्स जो भी होंगी पॉजिटिव ही नंबर होगा, तो दिस कुड बी सेकंड सॉल्यूशन, 5 and 16, isn't it so, ठीक है। और इट कुड बी 4 and 16 + 9 25, और इट कुड बी 3 and 25 + 9 34, और इट कुड बी 2 and 34 + 9 43, और इट कुड बी 1 and 43 + 9 52, एंड सो ऑन। बट प्रॉब्लम यहां पे ये आ रहा है कि हमारा अगर x नंबर है सिबलिंग्स का, तो 3x इज टोटल, 3x इज टोटल, तो 3x शुड बी ग्रेटर देन जी, ये भी तो कंडीशन होगा, गर्ल्स जितनी भी होंगी भाई 3x से तो छोटा ही होगा, क्योंकि कुछ तो बॉयज भी होंगे, ओके। सो क्या देख पा रहे हो यहाँ पे लास्ट वाले केस में, 1 वाले केस में, इफ x = 1 तो 3x आ जाएगा 3, तो ये तो केस पॉसिबल ही नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, बाय द सेम लॉजिक ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। 5 है तो 3x 15 होगा, बट g 16 आ रहा है, तो ये भी केस पॉसिबल नहीं, देयर विल बी ओनली वन केस दैट इज पॉसिबल, व्हेन x = 6, g = 7, तो 3x हमारा आ जाएगा 18 होगा। और अगर 3x 18 है, गर्ल्स होंगी 7, एंड इन दैट केस बॉयज हो जाएंगे कितने, 18 - 7 यानी कि 11 विल बी बॉयज, 11 हो जाएंगे बॉयज। तो क्वेश्चन पूछा है गर्ल्स कितनी है क्लास में, तो आंसर विल बी 7 गर्ल्स विल बी देयर। तो बड़ा ही प्यारा सा सवाल था, समझ में आया, क्लियर हुआ ये बात, ओके, ठीक है। इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूं समझ में आओगे। किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी बेसिक से बेसिक डाउट क्यों ना हो, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम if you have any doubts or queries at ADI TYAKT. That is all for this session. Bye bye, take care and keep learning.